Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice, and practice. Now let's solve fourth example. 7x plus 3y is equals to 15, 12y minus 5x is equals to 39. पहले क्या करेंगे, इक्वेशंस को नंबरिंग करेंगे, राइट? तो फर्स्ट I will write 7x plus 3y is equals to 15. This is my equation number 1. And यहाँ पे देखिए आप, तो आपको क्या पता चलेगा? First we have to write x. Now x is second time, right? So we'll write first minus 5x. Then I will write 12y is equals to 39. ये चेंज आपको करना है, ये याद रखना पड़ेगा, राइट? जानबूझ के यहां क्या दिया है, 12y minus 5x. We want first x and then y. So we have to change it. Minus 5x पहले लिखा, plus 12y बाद में लिखा, is equals to 39. This is your second equation. Now solve d. Cramer's rule है, तो d dx dy यूज करना है. d कैसे लिखेंगे? a1 a2 b1 b2. a1 a2 means 7 and minus 5 coefficient of x. b1 b2 3 and 12 coefficient of y. Now solve करो. 7 into 12 cross multiplication minus 3 into minus 5. 7 12s are 12 7s are 84. Minus into minus plus 5 3s are 15. 84 plus 15 एडिशन बन गई आपकी 99. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी. डी की वैल्यू आपके पास आ गई. नाउ dx, करेक्ट. dx कैसे लिखोगे बोलो? यस, इट इज c1 c2 b1 b2. c1 c2 मतलब क्या? इंस्टेड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x we'll write these last numbers 15 and 39 लिखता हूं. And then b1 b2 means coefficient of y 3 and 12 as it is. Now इनको सॉल्व करेंगे. 12 into 15 minus 3 into 39. 15 2s are 30, carries 3. 15 1s are 15 plus 3 18 minus 3 into 39. 3 9s are 27, carries 2. 3 3s are 11 plus 2 11. 3 3s are 9. 9 plus 2 11. तो 180 minus 130 17. 180 में से 117 माइनस कर रहा हूं. 10 minus 7 is 3. 7 minus 1 is 6. 1 minus 1 is 0. तो dx की वैल्यू कितनी आ गई? 63. So the value of dx is now 63. Now let's find out dy. dy कैसे लिखते हैं? a1 a2 c1 c2. a1 a2 7 minus 5. c1 c2 15 39. Let's solve this. 7 into 39 minus 15 into minus 5. Correct? 7 into 39 कितना हो रहा है? 7 9s are 63, carry 6. 7 3s are 21 and 6 27. Sorry, yes. Minus into minus plus 15 5s are 75. 273 plus 75 add करो. 3 plus 5 8. 7 plus 7 14, carries 1. 1 and 2 3. So dy is 348. So now you can see I have got it. Value of d मिला है. Then I got value of dx and then I got value of dy. What is formula for x? X is equals to dx upon d and formula for y was dy upon d. So now let's substitute the values. dx upon d 63 upon 99. 9 से डिवाइड हो सकता है. 11 9s are 99. सॉरी, 9 से डिवाइड नहीं हो सकता यहां पे. I will divide it by 3. 3 2s are 3 1s are 21 आ गया. 3 3s are 3 3s are. We'll again divide by 9.
3 7 जा एंड 11 3 जा, तो कितना आंसर आ गया आपका 7/11, राइट. So this is the value of x. Now the value of y, dy upon d, 348/99. फिर से डिवाइड करता हूं मैं 3 से. 3 3 जा 3 3 जा, दैट इज 33 आ गया. ऊपर डिवाइड करो 3 से. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. 116/33. Now we can't divide it by 3. Correct? 116 को 3 से डिवाइड नहीं हो सकता. Then we can't divide by 11 also. 116 को 11 से भी डिवाइड नहीं हो सकता. So this is my answer. So what is your answer then? Solution क्या लिखोगे? Solution, value of x and y. क्या value of x है? 7/11. And what is value of y? 116/33. This is your answer. आ रहा है समझ में? अच्छे से प्रैक्टिस करो. थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर्स है, बट एग्जाम्पल इज वेरी इजी. ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Now example number 5. X plus y minus 8/2, x plus 2y minus 14/3, 3x minus y upon 4. यहाँ पे क्या है? एक भी इक्वेशन दिया ही नहीं है, राइट? एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वी हैव टू सॉल्व. तो कैसे करेंगे? मैं क्या करता हूं, पहले ये जो एक्सप्रेशन है x प्लस वाई माइनस 8/2, इसके साथ में मैं ये लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो लेता हूं. क्या है? 3x माइनस वाई अपॉन 4. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसका एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई माइनस 8 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई को. So what we can get? 4x plus 4y minus 4 8 जा 32, 3 2 जा 6x minus 2y. x और y का टर्म लेफ्ट में चाहिए, तो 4x plus 6x, I will take on the left hand side, minus 6x बन गया, plus 4y minus 2y लेफ्ट में आ गया, plus 2y minus 32 राइट में गया, plus 32, राइट. तो 4x minus 6x क्या बन गया? इट इज minus 2x. 4y plus 2y इसकी एडिशन हो गई 6y is equals to 32. Can you divide by 2? So if you divide by 2, क्या मिलेगा आपको? Minus x. 2 2 will get cancelled. 2 3s are 6. So plus 3y is equals to 16. This is your equation number 1. देखिए हमने क्या किया, 3 एक्सप्रेशंस दिए थे, उसमें से हमने पहला इक्वेशन के साथ में लास्ट वाला एक्सप्रेशन ज्वाइन किया और उन दोनों को सॉल्व करके हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया. द इक्वेशन इज माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 16. अब इसके लिए मैंने फर्स्ट के साथ में थर्ड ज्वाइन किया था. अब मैं सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ भी थर्ड वाला एक्सप्रेशन लेता हूं, ओके, और सॉल्व करके देखता हूं. देखिए क्या होता. x प्लस 2y माइनस 14/3, सेकेंड एक्सप्रेशन, उसके साथ में ये वाला लेते हैं 3x माइनस वाई अपॉन 4. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2y माइनस 14 को और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस वाई को, राइट. सो सॉल्व. 4 into x is 4x, 4 2 जा 8y, 14 4 जा 56, 3 3 जा 9x minus 3y. Let's take x and y on left hand side. So what you can get? 4x minus 9x plus 9x on left hand side, which will become minus 9x, plus 8y minus 3y will be plus 3y, and minus 56 will get transformed on the right hand side, it will become plus 56. So now 4x minus 9x is minus 5x. 8y plus 3y
11y इक्वल्स टू 56। अब इसको हम कुछ डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे यहां पे मैंने 2 से डिवाइड किया था, इसको पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे मुझे कितने इक्वेशन मिले? 2। वैसे भी 2 ही इक्वेशन चाहिए ना। तो क्या क्या मिले हमें? -x + 3y इज इक्वल टू 16, -5x + 11y इज इक्वल टू 56। इन दोनों को हम पेज 2 पे लेके सॉल्व करते हैं। यहां पे मैंने इक्वेशन लिख के रखे हैं। ओके, कैसे सॉल्व करना है? क्रैमर्स रूल से। तो कैसे करना पड़ेगा? पहले d, देन dx, देन dy। d कैसे लिखोगे? a1 a2 b1 b2, राइट? a1 a2 मीन्स x के कोएफिशिएंट -1 -5, b1 b2 y के कोएफिशिएंट 3 एंड 11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करो। -1 इंटू 11 -3 इंटू -5। 11 into -1 is -11, minus into minus plus, 3 5 are 15, 15 minus 11 is 4। तो आपकी d की वैल्यू आ गई 4। नाउ dx, dx कैसे फाइंड आउट करना है? c1 c2 b1 b2। c1 c2 means instead of coefficient of x, right, last these two numbers 16 and 56। b1 b2 y के कोएफिशिएंट एज इट इज 3 एंड 11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 इंटू 11 -3 इंटू 56। 16 1 दा 16 कैरीज 1, 16 1 दा 16 प्लस 1 17, 176 हो गया। -3 इंटू 56, 3 6 दा 18 कैरीज 1, 3 5 दा 15 एंड 1 16। 176 minus 168 is 8। तो dx का आंसर आपका आ गया 8। नाउ dy, बताइए मुझे dy कैसे करोगे? a1 a2 c1 c2। a1 a2 मीन्स x के कोएफिशिएंट एज इट इज -1 -5। c1 c2 इंस्टेड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट, दीज लास्ट टू नंबर्स 16 and 56। Solve them. -1 into 56, -16 into -5, -56 minus into minus plus 16 5s are 80। Now 80 minus 56, 80 में से 56 माइनस हो गया, कितना मिला? Yes, it is 24, right? So dy is 24। So now what we get? We got value of d, dx and dy। तीनों वैल्यू मिल गई। What is formula for x? It is dx upon d, and formula for y was dy upon d। Substitute the values to get answer। dx upon d 8 upon 4, answer is 2। dy upon d 24 upon 4, 4 6 24, आंसर इज 6। व्हाट इज योर सॉल्यूशन? क्या लिखोगे आप? सॉल्यूशन पहले x देन y, दैट इज 2, 6। है ना इजी? देखो ये इक्वेशन एक बार मिल गया तो सॉल्व करना इजी था, बट इक्वेशन मिलने के लिए क्या किया हमने पहले एक्सप्रेशन के साथ में थर्ड एक्सप्रेशन ज्वाइन किया और एक इक्वेशन फॉर्म किया। सेकंड एक्सप्रेशन के साथ में थर्ड एक्सप्रेशन ज्वाइन किया, सेकंड वाला इक्वेशन हमने फॉर्म किया। अब कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई बोला कि मैंने सर मैं फर्स्ट और सेकंड एक साथ लेता हूं, एक इक्वेशन फॉर्म करता हूं, सेकंड थर्ड लेके एक इक्वेशन फॉर्म करता हूं, तो देयर कुड बी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ओके, लेकिन फिर भी फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों? सेम ही आएगा, राइट? याद रखना है, अच्छे से करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। Thank you for watching Top Maths.